ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ یہ زمین بالکل ویران تھی، نہ انسان، نہ شہر، نہ آبادیاں۔ صرف ایک ہی مخلوق یہاں آباد تھی، وہ تھے جنات۔ جنات کے قبیلے زمین کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے تھے، مگر ان کے درمیان ہمیشہ لڑائیاں، جھگڑے، فساد اور خون ریزی ہوتی رہتی تھی۔ پوری زمین میدان جنگ بن چکی تھی۔ یہ منظر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کے فساد کو پاک کر دیا جائے۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا اور وہ بڑے بڑے لشکروں کی صورت میں زمین پر اترنے لگے اور جنات پر زبردست حملہ کر دیا۔ جنات نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ کے حکم کے سامنے وہ بے بس ہو چکے تھے۔ اس لمحے میں بے شمار جنات ہلاک ہوئے، اور جو بچ گئے تھے وہ پہاڑوں، جنگلوں اور دور دراز جزیروں میں جا کر چھپ گئے۔ انہی جناتوں میں ایک نہایت عبادت گزار جن تھا، جس کا نام تھا عزازیل۔ عزازیل باقی جناتوں سے مختلف تھا۔ وہ فساد سے الگ رہتا اور دن رات عبادت کرتا رہتا تھا۔ جب فرشتے جنات کے خلاف لڑنے آئے تو عزازیل نے کھل کر فرشتوں کا ساتھ دیا۔ فرشتے اس کی عبادت اور اخلاق سے متاثر ہوئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو وہ اسے اپنے ساتھ آسمانوں پر لے گئے۔ اب عزازیل فرشتوں کے محفلوں میں رہنے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا علم اور عبادت میں مقام بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا درجہ بہت بلند ہو گیا۔ مگر اسی دوران اس کے دل میں خاموش سی خواہش پیدا ہونے لگی، کاش کہ زمین کی خلافت مجھے عطا ہو جائے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، پھر ایک دن رب العزت کی طرف سے ایک اعلان ہوا، ایک ایسا اعلان جو سب کے دل کو دہلا دینے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین کے ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تمام مخلوقات میں ہلچل سی مچ گئی۔ سب کے ذہن میں یہی سوال تھا کہ زمین پر اللہ کا نائب کون ہوگا۔ فرشتے زمین پر اس سے پہلے جنات کے فساد دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے حیران ہو کر کہا، یا رب العزت، عرض کیا ہے، کیا تو زمین پر ایسے فساد خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم ہر وقت تیری تبی اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تو نہیں جانتے۔ دوسری طرف عزازیل یہ اعلان سن کر بہت خوش ہوا۔ وہ بہت کانفیڈنٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا مقام ہے، اسی لیے زمین کی خلافت اسے ہی ملنے والی ہے۔ لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین کے مختلف علاقوں سے مٹی جمع کرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہاڑوں، میدانوں، ریگستانوں اور زرخیز زمین ہر جگہ سے تھوڑی تھوڑی مٹی جمع کی۔ یہ مٹی مختلف رنگوں کی تھی، کسی جگہ کی مٹی نرم اور کسی جگہ کی سخت۔ اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق تخلیق بنائی شروع کی، انسان۔ جب پہلے انسان کی تخلیق مکمل ہوئی تو اس کا نام رکھا گیا آدم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونکی اور یوں انسانیت کی ابتدا ہو گئی۔ اب تمام مخلوقات کی نظر حضرت آدم علیہ السلام پر تھی کہ ان میں کیا خاص بات ہے، وہ کیسے سب سے ڈیفرنٹ ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو خاص علم عطا کرنا شروع کیا، ایسا علم جو اس سے پہلے کسی سے بھی نہ لیا گیا تھا، نہ فرشتوں کو نہ جنات کو۔ اب اسی علم کے متعلق امتحان لینے کی باری تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں اور آدم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا۔ فرشتے کسی بھی سوال کا جواب نہ دے سکے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام سوالوں کا ٹھیک جواب دیا۔ اب پر یہ بالکل واضح ہو گیا کہ انسان ان سے بہت سپیریئر ہے۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی حضور پہ عرض کیا، یا اللہ، ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ بے شک تو ہی علم والا، ہمت والا، اور ان پر وہ دن آ گیا جب زمین کی خلافت کا فیصلہ کیا جانا تھا۔ مجلس میں تمام فرشتے اور عزازیل بھی موجود تھا۔ عزازیل کے دل میں انسان کے خلاف حسد کی چنگاری بھڑک رہی تھی۔ اسے اپنی عبادت پر بہت ناز تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ آدم تو مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ یہ یقین تھا کہ میں اللہ کے نزدیک افضل ہوں، خلافت تو مجھے ہی ملے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فیصلہ سنا دیا کہ زمین پر اس کا خلافت انسان ہوگا۔ عزازیل پر یہ خبر بجلی بن کر گری۔ وہ شوق میں چلا گیا، اس کی آنکھیں غم اور غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں اور عزازیل کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ رب العزت کے ساتھ ہی تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، سوائے عزازیل کے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اللہ کے حکم کا انکار کرے۔
मगर बदबख्त गर्दन अकड़ाए गुस्से और तकब्बुर के साथ खड़ा हुआ और दरबार खुदा बंदी की। सन्नाटा छाया हुआ था। अल्लाह ताला ने पूछा, तुझे किस चीज़ ने रोका है कि तू सजदा ना करे जब मैंने तुझे हुक्म दिया? इब्लीस ने तकब्बुर से जवाब दिया, मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहायत जलाल से फरमाया, निकल जा यहाँ से, तुझे ये हक नहीं यहाँ तकब्बुर करे, यकीनन तू जलीलों में से है। अब वो अजाजिल इब्लिस बन चुका था, मरदूद और शैतान। मगर बजाय शर्मिंदा या तौबा करने के उसने अल्लाह ताला से हैरान कुन दरख्वास्त की, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे, जिस दिन इंसानों को कब्रों से उठाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या तुझे मोहलत दी गई। लेकिन इब्लिस ने वही एक और ऐलान किया जो चैलेंज साजिश थी। कहने लगा, जो चूँकि तूने मुझे गुमराह किया था, इसीलिए मैं भी कसम खाता हूँ कि इंसानों के घाट लगाकर सीधे रास्ते पे बैठा रहूँगा। फिर मैं इन पर चारों तरफ से हमला करूँगा, इनके सामने से भी, इनके पीछे से भी, इनके दाएं से भी, इनके बाएं से भी, और तू इनमें से ज़्यादातर को शुक्र गुजार नहीं पाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहायत जलाल से फरमाया, निकल जा यहाँ से जलील और मुर्तार होकर। इनमें से जो भी तेरे पीछे चलेगा वो भी तेरा साथी होगा और मैं तुम सब से जहन्नम को भर दूंगा। यूँ इब्लीस नहायत ही जलील होकर बारगाह खुदाबंदी से निकाला गया और वो गुस्से और इंतकाम की आग में जल रहा था। फिर उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा इंसान पर था। इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मजलिस से निकाला जा चुका था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का असल इम्तहान शुरू होने वाला था। इंसान और शैतान का मुकाबला शुरू होने वाला था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे। वहाँ हर तरह की नेमत थी, लेकिन फिर भी वो अकेले महसूस कर रहे थे। उनकी तन्हाई का एहसास होता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तन्हाई को दूर करने के लिए उनकी जौजा हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। वो उनकी साथी बनी। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा दोनों खुशी से जन्नत में रहने लगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहाँ से चाहो खाओ पियो, खुशी से रहो, मगर एक दरख्त के करीब मत जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। जन्नत में हर तरह की नेमत थी, आराम से सुकून था। सिर्फ एक दरख्त था जिसके करीब जाने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया था। मगर शैतान जो पहले ही जन्नत से निकल जा चुका था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हसद में जल रहा था और वो चाहता था कि आदम और हव्वा भी अल्लाह ताला की नाफरमानी करे, वो भी जन्नत से निकाला जाए। इसीलिए चुपके चौके आया और हज़रत आदम और हव्वा के दिलों में वसवसे डालना शुरू कर दिया। वो उनसे कहने लगा, तुम्हें जन्नत के हर दरख्त के खाने की इजाज़त है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ये एक दरख्त से क्यों रोका गया? आखिर क्या वजह है? फिर उन्हें झूठ बोलकर कहा, तुम्हें रोका इसलिए गया है कि अगर तुम इस दरख्त के फल खा लिए तो तुम्हें हमेशा के लिए ज़िंदगी मिल जाएगी, तुम फरिश्ते बन जाओगे, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। ये दरख्त तो सर्ज खुल्द है, यानी हमेशा की ज़िंदगी देने वाला दरख्त। इब्लीस ने बड़ी नरमी, चालाकी और झूठी कस्मों से ये जाहिर किया कि वो उनकी खैर खा है। वो बार बार ये कहता रहा, तुम दोनों का भला चाहता हूँ, मेरी बात मानो, इस दरख्त का फल खा लो, देखना तुझे ये मुकाम हासिल होता है। हज़रत आदम और हव्वा ने कभी झूठ ना सुना था, ना किसी को अल्लाह की झूठी कस्में खाते देखा था, तो बिल आखिर वो धोखा खा गए और उस दरख्त का फल खाए। बस यही वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदल दिया था। अल्लाह ताला का हुक्म टूट चुका था। जैसे ही उन्होंने फल खाए, फ़ौरन जन्नत का नूरानी लिबास उनके जिस्म से उतर गया और घबरा कर जन्नत के पत्तों से खुद को छुपाने लगे। उन पर एकदम शर्मिंदगी छा गई। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को पुकारा, क्या मैंने तुम्हें दरख्त से मना नहीं किया था और ये ना कहा था शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? दोनों ने जब अल्लाह की पुकार सुनी तो मारे खौफ के
कांप उठे। हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन थे कि उनसे क्या गुनाह हो गया, कैसे वो शैतान के धोखे में आ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रही थी अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफ़ी कैसे मांगे, मगर अल्लाह की करीम जात जो उनकी हालत पर रहम आ गया। अल्लाह ताला ने खुद को उन्हें एक ख़ास दुआ सिखा दी। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, क्या अगर तू हमें बख्शे। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पे जुल्म किया, अगर तू हमें ना बख्शे, हम पर रहम ना करे तो हम यकीनन खसारे वालों में से हो जाएंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगना शुरू की तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली और यूँ तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए खुल गया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तुम सब इंसान और शैतान ज़मीन पर उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन होंगे, वहाँ तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक ठहरना है और वहाँ ज़िंदगी गुजारनी है। यूँ हजरत आदम और हजरत हव्वा को जन्नत से उतार कर ज़मीन पर भेज दिया गया। यही वो जगह थी जहाँ उनका और उनकी आने वाली नस्लों का इम्तहान लिया जाना था। यहाँ इंसान और शैतान की एक मुसलसल जंग रहनी थी। इस ज़मीन पर तो सब मुख्तलिफ था। इधर आकर उन्होंने पहली बार भूख का एहसास हुआ, पहली बार खेती बाड़ी की, रोटी पकाई और तब जाकर पेट भरा। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ज़मीन पर उतरने के बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। उनके साथ गंदम के 7 दाने भी थे। हजरत आदम ने पूछा, ऐ जिब्रील, ये क्या चीज़ है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये उसी दरख्त का फल है जिसके बारे में आपको मना किया गया था, लेकिन आपने वो खा लिया। हजरत आदम ने फरमाया, अब मैं ये दानों का क्या करूं? हजरत जिब्रील ने कहा, इन्हें ज़मीन में बो दीजिए। हजरत आदम ने उन दानों को ज़मीन पर बो दिया। ये दाने बहुत वजनी और बड़े थे, दुनिया के कई दानों से कई ज़्यादा। कुछ अरसे बाद वो दाने उगाए। हजरत आदम ने फसल काटी, दाने साफ किए और फिर उन्हें पीसा, आटा गूंदा और रोटी बनाई। यूँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर मेहनत करके खाना खाने का तरीका सीखा। इसी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहला लिबास भी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की मदद से तैयार हुआ। वो भेड़ की ऊन से बना था। पहले उन्होंने ऊन काटी, फिर चरखा पर धागा बनाया, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए जुब्बा और हजरत हव्वा के लिए कमीज और ओढ़नी तैयार की और यूँ इस ज़मीन पर इंसानियत का आगाज़ हुआ। इंसान और शैतान की कहानी शुरू हुई, एक ऐसी जंग जो आज तक जारी है, जहाँ शैतान और इंसान धोखा देता है और उसे भटकाता है और अल्लाह के हुक्म से रोकता है, और इंसान अक्सर उसके धोखे में आ भी जाता है। लेकिन याद रखना, कामयाब वही है जो गुनाह के फ़ौरन बाद अपने बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह निजामत के साथ अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करे, क्योंकि बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत जात नहायत मेहरबान और बख्शने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने ख्याल कमेंट में बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सब तक ये पैगाम पहुंच सके। ऐसे ही ईमान फिरोज बाकियत के लिए हमारे चैनल ही सालिक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की इब्तिदा आपको फ़ौरन मिल सके। अब अगली वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।